A very good morning, students. So today we are here to talk about the poetry, right? So your flamingo book and the first poetry. My mother at 66, right? By Kamla Das, right? So Kamla Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Some of her works in English include the novels Alphabet of Last, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and many other stories. In addition to these 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example of the same. What is it the example of? The sensitive writer who captures the subtleties of human relationship in lyrical idiom, right? So basically this is a presentation of the human relationship, how people behave with each other, right? Here are some of the notes which I have prepared about the poetry, right? So once the poet went to visit her mother, okay? So point number 1 is that she was not staying with her mother. She goes to visit her mother. Alright? She was on her way back to airport to return to Cochin. She looked at her who was seated beside her in the car. Her mother has dozed off to sleep and her aging face was smoky in color like the ash. Her mouth was open and she resembled almost a dead body. The poet realized that her mother was old. She felt pain and sympathy for her. Her mother needed love, affection, and care. Okay? She went to visit her mother, and while going to the airport, she sees her and thinks. Alright? So this is point number 1. In order to come out of the gloom, the poet shifted her glance and looked out of the car's window. There she saw young trees pass by. Little children were running out of their houses into the playgrounds. These things were contrary to the aging face of her mother. Contrary, right? Try to understand. They symbolized energy, life, and happiness. Contrary, contrast से बना हुआ है, right? Contrary means
exact opposite. Her mother was dull, aging, fragile, weak, and those children coming out to play in the playground and those children coming out to have a chat with other people, they were so full of energy, they were so full of joy, and that entire thing was contrary to what she was looking in her mother, right? As they reached the airport and the poet was about to leave her for the aeroplane, she glanced at her mother once more. Her mother appeared weak and pale, just like the moon in the winter season, which seems to have lost all its strength. The poet felt the pain and fear of losing her mother, and she was reminded of her childhood when she used to fear losing her mother. As a child, she could not bear to be separated from her mother even for a few moments. Now, the loss would be permanent. As her mother, she was reminded of her childhood when she used to fear losing her mother, and as a child, she could not bear to be separated from her mother even for a few moments. Now, this would be permanent as the mother approaches death and she would lose her forever. The poet did not express her feelings. She smiled and said, "See you soon, Amma," because she wanted that her mother should live and they could meet again. Alright? So, did you get what actually they are talking about? Well, a very short poetry, not very long, but as I have told you earlier as well in your previous classes, your other teachers might have also told you that some things which are not expressed properly even with the words in a story, poets are magical people. Poets have the ability to portray, to convey any such things, right? Any such things which cannot be expressed easily by normal people into very beautiful forms and formats, right? So, these many lines from a poetry may be having this so much of a meaning, right? And always a poetry has two meanings. One meaning as like the word meaning of the poetry, and the other meaning is the meaning behind the text. ठीक है? एक शाब्दिक अर्थ और एक भावार्थ. Alright? So before you read aging is a natural process, have you ever thought what our elderly parents expect from us? Come on, just give a thought. कभी सोचा है आपने कि एक्चुअली हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? उनकी एज हो रही है, राइट? दे आर ग्रोइंग ओल्ड, एंड व्हाट आर दे एक्चुअली expecting from you? Just give a thought, right? So you can also write to me about your thoughts. There's no hard and fast rule, right? You can mail me also. So we are just going to begin with the text. Ready? Do it, finish it. Okay. Settled? Yeah. So, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me.
आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, अभी जस्ट नाउ वी आर नॉट गोइंग ऑन टू इट, बट यू जस्ट कीप वन थॉट। आप एक ये सोच अपने दिमाग में रखिए कि मदर उनकी सचमुच में उनके साथ थी उनकी कार में, या इट वॉज मियर हर फ्रेगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, सिर्फ वो ऐसा सोच रही थी। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Right? So this much is the poetry, very short, very small, and written only in a single sentence with punctuation marks, comma and full stops. She finishes, right? So what actually happens, that the mother of the poetess is turning 66 years old now, तकरीबन 66 साल की हो रही है उनकी मदर, और जब ये कहीं और वर्क करती होंगी, कहीं और रहती होंगी, जैसा आजकल का कंसेप्ट है, चिल्ड्रन दे डोंट लिव विद देयर पेरेंट्स एनीमोर। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वी स्टे इन लाइक सिटीज लाइक इलाहाबाद, लखनऊ, द उत्तर प्रदेश एरिया, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। और फॉर सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में यू गेट इन्वॉल्व, you get a job in a software company, so all the software companies, they lie only in Noida, Ghaziabad, and the rest of them are all in south, all Bengaluru, Pune, those places, Hyderabad, right? So that is what is happening nowadays, कि बच्चे छोड़ करके पेरेंट्स को, भाई जॉब है, करना है, रहना है, तो दूर दूर अपने घर से रहते हैं। ऐसी ही कोई सिचुएशन यहाँ पर हमारे सामने आई है, जिसमें हमारी जो पोएटेस है वो अपनी मदर को मिलने के लिए आई हुई है। तो वो अपनी मदर से मिलने आई, घर पे उनके साथ कुछ दिन रही, कोचीन में उनकी मदर रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि कोचीन में वो रहते हैं, उनके पेरेंट्स, फादर का भी कोई जिक्र नहीं है, बट एट वन प्लेस शी हैज रिटन पेरेंट्स हाउस, दैट मीन्स कि फादर माइट नॉट बी अलाइव, पहले उनके मम्मी पापा का घर होगा, शायद अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, और ये अपनी मदर से मुलाकात करने के लिए आई थी। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन अपनी मदर के साथ रही। जन्माष्टमी का माहौल है, कुछ भी अपना सेलिब्रेशन, पाग वाग, मिठाई, मीठा मिष्ठान, मक्खन घी सब अपना बना, पूजन हुई, घर में रही, मदर के साथ काफ़ी टाइम भी इन्होंने स्पेंड किया। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने नोटिस किया, बहुत क्लोजली नोटिस किया कि अब इनकी मदर, जैसे इन्होंने अपनी मदर को देखा था, अब वो उस तरीके से नहीं लगती। अब उनकी स्किन जैसी ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, शाइनी हुआ करती थी, वैसी स्किन अब नहीं रह गई, उसकी शाइन काफ़ी कम हो गई है, उसके ऊपर काफ़ी सारी झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़ गए हैं, राइट।
काफ़ी सारी वो जो एनर्जी मदर के अंदर रहती थी, सुबह से शाम तक खाना बना रही हैं, सबके लिए बना रही हैं, फिर कभी कपड़े धो रही हैं, कभी बर्तन धो रही हैं, कभी घर के काम कर रही हैं, सारे काम कर रही हैं, अब वो कुछ एनर्जी भी कम हो गई है। ये सब कुछ इन्होंने नोटिस किया अपनी मदर में, विदाउट अटरिंग, विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, बिना कोई भी एक भी शब्द कहे हुए। ठीक, अब जब ये वहां से निकल करके अपनी गाड़ी से जा रही हैं एयरपोर्ट वापस जाने के लिए, ठीक है, तब she might have taken a taxi but she said I am driving, तो वो actually that is also known as a driving only, it doesn't necessarily means, पोइट्री में काफ़ी सारी चीज़ें जैसी लिखी होती हैं 100% एग्जैक्ट उनका मीनिंग वो नहीं होता। पोएट के दिमाग के हिसाब से हमें सोचना होता है कि वो हमें इन लाइनों से क्या बतलाना, क्या सिखलाना चाहते हैं। ठीक है, सो when she was driving to the airport, और वो एयरपोर्ट जाते जाते रास्ते में सोचते सोचते इतने दिन मदर के साथ रही, तो वो वही सोच रही है। और जैसा कि हमारे साथ हमेशा होता है कि हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, तो उसकी कंपैरिजन करते हैं, राइट। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, हमने देखा कि एक ये येलो कलर का पेन है, राइट, तो अब हम ये येलो कलर का पेन देखेंगे, इसके सिल्वर कलर का कैप है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे कि जो हमारा ट्रांसपेरेंट दिखने वाला पेन है जिसमें से रिफिल दिखाई पड़ती रहती है, ये बॉल है, वो जेल है, ये डॉट है, वो निब है। तो हमेशा टू कंपेयर इज वन ऑफ आवर टेंडेंसीज एंड वी ऑलवेज कीप ऑन कंपेयरिंग वेरी मेनी थिंग्स, राइट। सो व्हाट हैपेंस as she compares her mother with the mother, जैसे ही वो अपनी मदर की तुलना अपनी मदर से करती हैं, कैसे अब की जो उनकी मदर है उनकी तुलना करती हैं आज से 15 साल पहले जो उनकी मदर हुआ करती थी उनसे, तो उनको समझ में आता है कि आज वो उनकी मदर वो इतना ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई हैं, इतना ज़्यादा उनसे अटैच्ड है। ऑफ कोर्स उनकी मदर में तो अटैचमेंट तो हो गई कि उनको लग रहा है कि जैसे वो भी साथ साथ उनके साथ उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हैं, राइट। और साथ ही साथ जब वो इस बात को सोच रही हैं कि मदर हमारी अब कैसे लगने लगी है, तो ऐसा लगता है कि उनका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ, चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ, एकदम चेहरे का कलर बिल्कुल उड़ा सा पेल सा चेहरा हो गया है, रिंकल्ड, फ्रजाइल, बहुत वीक, बहुत नाजुक सा हो गया है उनका फेस, उनकी बॉडी। तो इनको लगता है कि ये कितना कितना टाइम हो गया है और पहले मदर मेरी कैसी थी, अब मेरी मदर कैसी हो गई है। इस बात को सोच के उन्हें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स स्टार्ट टू गैदर हर माइंड। बहुत सारी सोच, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे थिंकिंग उनके माइंड में आने लगती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और पहले क्या था, अब क्या हो गया है। ऑलमोस्ट एक डेड बॉडी की जैसे उनको अपनी मदर की बॉडी लगती है, अपनी मदर का फेस लगता है जो वो सोच रही थी। वो सोच, वो थिंकिंग, वो थॉट्स इतने ज़्यादा हैवी हैं, इतने ज़्यादा इंटेंस हैं, इतने सेंसिटिव हैं, इतने सेंटिमेंटल हैं कि वो उन थॉट्स में रहना ही नहीं चाहती। कमला दास हमारी पोएटेस, वो अपने माइंड को उस थॉट से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, राइट। Our mind is a very beautiful and magical part of our body as a matter of fact. हमें जो चीज़ें पसंद होती हैं हम उन चीज़ों को तो याद रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती या जिन मेमोरीज से, जिन घटनाओं से, जिन इवेंट्स से हमें दुख होता है,
हम उन इवेंट्स को कभी याद रखने की कोशिश नहीं करते। तो जैसे ही मदर का एक ही ख्याल आया, एक थॉट मन में आया, तो तुरंत कभी कभी हम लोग अपने आप को मन में ही क्या सोच रहा है, गलत बात, ऐसा थोड़ी सोचते, अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी इनकी नज़र कार की विंडो से बाहर पड़ी, बच्चे वहाँ खेल रहे थे, कुछ बच्चे अपने घरों से बाहर आकर के खेलने के लिए फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे थे, हंसते खेलते हल्ला गुल्ला मचाते, ये आनंद का। पेड़ों को उन्होंने देखा था, ट्रीज वर शेकिंग एंड डांसिंग विद द विंड। पेड़ों को उन्होंने देखा कि पेड़ खूब हवा चल रही है बहुत अच्छी, तो सारे पेड़ ऐसा लग रहा है कि खुशी से झूम रहे हैं, बच्चे खुशी से घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं। उनको ये सारी चीज़ें अपनी मदर से इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, इतनी कॉन्ट्रास्टिंग लगती हैं कि वो सोचती हैं कि यार एक तरफ तो हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम है, मदर की इतनी तकलीफ है, वो इतनी डर लग रही है, इतनी एजिंग लग रही है, और इन लोगों को देखो, इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है, ये लोग खेल रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको हमारी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सारे थॉट्स उनके माइंड को गैदर कर लेते हैं। ये सब होते होते, ये सब सोचते सोचते, नज़ारे देखते देखते वो पहुंच जाती हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो जाता है, अंदर चली जाती हैं, सब चीज़ें देखने बोलने सोचने के बाद। सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ दूर सिक्योरिटी चेक से जब ये खड़ी होती है अपना बैगेज ले आकर के, तो फिर से इनको दिखता है कि इनकी मदर इनको बाय बाय कर रही है, कहीं पर दूर खड़े होकर के इनको हाथ हिला रही हैं। कमला को लगता है कि अरे अभी 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 तो मैं ये साथी में थी, अभी तो मैं इनके बारे में सोच रही थी, अभी तो मैं ये सोच रही थी कि कितनी कमज़ोर कितनी वीक हो गई हैं, और अभी ये दूर से मुझे बाय बाय कर रही हैं, हाथ हिला रही हैं। क्या करूं, ना जाऊं क्या, क्या करूं, जॉब छोड़ दूं क्या, मदर के साथ रह लूं। सी द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। जॉब आप छोड़ सकते हैं, वो दरवाजा तो आपके लिए हमेशा खुला है। और पेरेंट्स शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट आई बिलीव सो। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, लेकिन हमारे हिसाब से हमारा मानना तो यही है कि पेरेंट्स ने हमें पैदा किया, पाल पोस करके इतना बड़ा बनाया, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। आज जब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं तो हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट अग्री विद दैट। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट दिस पॉइंट। बहुत स्ट्रांगली मैं इसे ऑब्जेक्ट करता हूँ कि ये बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी बोलिए, और फिर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ करके कहीं और चले जाइए। काम वो करना चाहिए कि जिससे सब लोग खुश रहें। गॉड हैज डिफाइंड दोज थिंग्स विद द सेम वे। उनके बुढ़ापे का सहारा आप हो। आपने पहली बार इतने सालों बाद शायद गई होंगी घर, कमला दास, इतने सालों बाद उन्होंने अपनी मदर को देखा, तो उनको देख करके बड़ा दुख लगा। थोड़ी बहुत नहीं, इतनी ज़्यादा कमज़ोर उनको अपनी मदर लगी कि ऐसा लगा कि जैसे अभी उनकी डेथ होने वाली है, बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ पे पहुंच गई, जबकि ऐसा नहीं था। 66 इज नॉट एनी एज टू डाई, आई मीन नेचुरली ऑफ कोर्स। पहले ज़माने में लोग 100 साल 110 साल काफ़ी जीते थे। अब आज की डेट में 88, 89, 90 years you can say, 85 to 90 has become the appropriate age. Yes, it is very difficult to understand
लेकिन बट मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिए और समझिए, ये ज़िंदगी की सच्चाई है, इसे हम और आप बदल नहीं सकते। ठीक है, आज की ऑन एन एवरेज एज 85 टू 90 भी कम ही लोग पहुँच पाते हैं, 85 ही बल्कि हो गई है आजकल की नॉर्मल लिविंग एज। तो 66 से 85 तक अभी तो 20 तकरीबन 20-19 साल तो नहीं है। इतनी जल्दी उन्हें घबराने की क्या आवश्यकता है? घबराने की उन्हें आवश्यकता इसीलिए है बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू एवरीथिंग। आधा उनकी मदर का टेंशन ही वो होगा कि वो जो उनके बेटे, उनकी बच्ची उनके साथ उनके घर में नहीं रहती, या चलो गर्ल है, आई डोंट नो, शी आई एम तो जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग टाइप। इट माइट बी दैट शी मस्ट हैव बीन मैरिड टू सम अदर पर्सन इन सम अदर सिटी। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शादी हुई हो किसी और आदमी के साथ किसी दूसरे शहर में, राइट? सब तरफ सोच सकते हैं आप, बिकॉज पोइट्री इज नेवर सर्टेन। बट वो समझाना हमें क्या बात चाहते हैं, हमें उस मुद्दे पर जोर देना है। तो जब सिक्योरिटी चेक वगैरह के बाद फिर से दोबारा से इन्होंने अपनी मदर को देखा, इनको वेव करते हुए, इनको बाय करते हुए, तो फिर से इन्होंने क्या देखा, फिर से इन्होंने देखा कि इनकी मदर वॉज वेरी मच पेल, वेरी मच फ्रजाइल and what? And very weak, right? So there are certain things which need to be taken care of, right? जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट? बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। तो कोई चाहे हम काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि वो सही है या गलत है, लेकिन जब वो होता है तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं। यहाँ पर जब इन्होंने देखा अपनी मदर को, वैन शी लुक्ड वैन, वैन मीन्स ऑल्सो पेल, वीक, इल, राइट? She saw her mother looking wan, looking pale, and as the late winter's moon, and felt that old familiar ache. और जैसा कि सर्दियों का चांद होता है, सर्दियों का चांद, सर्दियों में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर द मून इज नॉट प्रॉपरली, नॉट फुल्ली विजिबल, थोड़ा सा हेजी होता है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा फॉग, थोड़ा सा स्मॉग, थोड़े से क्लाउड्स, और उतनी सर्दी मिला करके चंद्रमा आपको उतना क्लीन, उतना साफ नहीं दिखाई पड़ता जितना कि आप उसे नॉर्मल डेज ऑफ द ईयर में देख सकते हैं, विंटर्स के अलावा। स्प्रिंग, रेनी, मॉनसून में आप उसे और अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन विंटर में उतना क्लियरली नहीं दिखता, वो चमक नहीं दिखती चंद्रमा पे। उसी से उन्होंने कंपेयर किया है कि वो फेस तो बहुत फेमिलियर था मेरी मदर का, वो बाय बाय भी कर रही थी, मुझे भेजने आई थी, शायद उनकी मेमोरी, उनकी याद मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने पहुंचाने आई थी, लेकिन अब वो एनर्जी, वो चमक, अब उनकी मदर वो मदर नहीं रह गई थी जिनको इन्होंने कुछ साल पहले देखा था। अब उनकी मदर वो मदर नहीं रह गई थी जिन्होंने इन्हें बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा इस लायक बनाया था। क्यों? क्योंकि द टाइम एक्चुअली नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन, राइट? समय बहुत बलवान होता है, किसी के लिए रुकता नहीं है, और समय ही एक जीवन का सत्य है। समय बीतता गया, चीज़ें बदलती हैं। कल जो मदर थी आज वो ग्रैंड मदर हैं, आज जो ग्रैंड मदर हैं कल वो नहीं होंगी, आज जो नॉर्मल गर्ल है कल वो वाइफ बन जाएगी, वो जो वाइफ हैं वो फिर उसके बाद मदर बन जाएंगी, उसके बाद मदर हैं तो वो फिर भाभी बन जाएंगी, दादी माँ बन जाएंगी, ताई जी बन जाएंगी। तो देयर आर वेरियस रोल्स, द सेम इज विद द मैन ऑल्सो।
Same is similar is with the fathers and the husbands and the papas, right? तो कहने का मतलब कि ये जो टाइम का सर्किल है, दिस नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। अभी तक तो ये जब उनसे दूर रहती थी तब तो उन्हें पता नहीं चलता होगा ये पोइट्री इज़ वेरी ओल्ड, तो उस वक्त वो वीडियो कॉल्स और दीज थिंग्स वर नॉट इन्वेंटेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो हर रोज़ फ़ोन करके अपनी मदर से वीडियो कॉल पे वीडियो चैटिंग पे बात कर लें और उन्हें देख लें कि वो कितनी चेंजेस उनके अंदर आ गए हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि किसी की मदर कैसी भी हो, बच्चों को वो दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन लगती हैं। हम कभी देखते ही नहीं है कि उनके चेहरे की कौन सी शाइन कम हो गई या कहाँ पर रिंकल पड़ गए या कहाँ पर सर के बाल थोड़े से कम हो गए, ये हम कभी देखते ही नहीं है। हाँ, जब कभी हम बहुत ध्यान से, जब वो कभी हमें बुला लें या जब हम उनके सर में कभी ऑयल लगा रहे हों या जब कभी उनके बहुत करीब बैठ करके बात कर रहे हों, तब हमें जा कर के समझ में आता है कि नहीं, चेंजेस तो काफ़ी आ गए हैं, राइट? तो पोएटिस हमें यही बात बताना चाहती हैं। वो एक, वो वैन, वो पेल, वो एक इज व्हाट? एक इज द पेन, राइट? तो वही फेमिलियर एक, जैसे दर्द में मैंने उन्हें देखा था, जिस तरीके का दर्द मुझे उनसे बिछड़ने पे हुआ था, जिस तरीके का दर्द मुझे उन्हें गाड़ी में देख करके हुआ था, उसी तरीके का दर्द मुझे फिर से महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, और जो मेरे बचपन का डर था, एट एवरीबडीज चाइल्डहुड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हर एक बच्चे के बचपन में एक न एक बार ऐसा होता ही है कि वो घर पे अकेले छूट जाते हैं या वो सो रहे होते हैं, उठ करके देखते हैं तो कोई नहीं होता और सब लोग कहीं और होते, मतलब घर में ही होते बट उनके सामने नहीं होते, और वो बच्चा अचानक से घबरा जाता है कि सब लोग कहाँ चले गए हमें छोड़ करके, और वो रोने लग जाता है। तो ये उसी चाइल्डहुड के फियर को याद कर रही हैं कि वो किस तरीके से कितनी परेशान हो जाया करती थी, कितनी डर जाया करती थी कि क्या हो गया, ऐसा तो नहीं, मदर मेरी कहाँ चली गई, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई। और फिर जैसे 2 मिनट बाद मम्मी दौड़ करके, अरे क्या हो गया, क्यों डर गए, सो रहे थे, अरे घबरा गए, अच्छा कोई बात नहीं, आओ। शी गिव्स यू अ हग एंड शी गिव्स यू अ किस ऑन द फोरहेड एंड यू बिकम नॉर्मलाइज्ड एंड यू फॉरगेट दैट थिंग इमीडिएटली। आज कुछ वैसा ही डर हमारी पोएटिस को फील हो रहा है अपनी मदर से मिल करके जब ये लौट रही हैं, तब वैसा ही कोई एक डर कि कहीं मैं अगर सोऊं और फिर मैं जब उठूं और अपनी मदर को ना देख पाऊं तो, या अभी तो वो 66 है और पलक झपकते ही जैसे इतने साल बीत गए, ये 10-15 साल 20 साल भी वैसे ही बीत जाएंगे, या यू नेवर नो, गॉड्स थिंकिंग एंड गॉड्स व्हाट यू कॉल written, God's decisions are always stranger and unpredictable. Nobody in this world can predict nature कि कब क्या कैसे हो जाए। मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कल को कहीं मान लीजिए कि मैं ना रहूँ, ख़त्म हो जाऊँ, ज़ाया हो जाऊँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन हम अपने बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं आज रात में सोऊं और कल सुबह उठूं ही ना, तो राइट, सो देयर आर वेरी मेनी थिंग्स इन विच द पोएट वांट्स यू टू थिंक ओवर इट। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो जिसको कहते हैं कि सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है साइकोलॉजी के हिसाब से, राइट, वो हमें यही कहता है कि जो चीज़ें, जो थिंकिंग, जो इवेंट्स, जिन चीज़ों से, जिन मेमोरीज से हमें तकलीफ हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, हम उन मेमोरीज को कट करें और डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि उन्हें याद करने से हमें तकलीफ होती है, चोट लगती है, तो इसलिए हम उन्हें याद करना ही नहीं चाहते हैं। हम उन्हें सिर्फ क्या कहना चाहते हैं, हमने सिर्फ
पोइटेस ने क्या किया, अपनी मदर को कहा सी यू सून अम्मा। बस जैसे ही उन्हें आखिरी बार देखा तो हमने बस उनसे यही कहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर था अभी भी, हमने मुंह से ज़रूर कहा कि सी यू सून, आपसे जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर वो डर, उनके चेहरे से उनकी सिचुएशन देख करके, उनकी हालत देख करके कहीं ना कहीं वो डर तो मेरे अंदर था ही, लेकिन तब पर भी हमने अपने अंदर वो जिसको कहते हैं कि पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखी और गॉड से यही प्रार्थना करी कि भगवान प्लीज़ सब अच्छा रखिए, सबकी रक्षा करिए और मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ उनका ख्याल रखिए। और वही फेस, उनका स्माइलिंग फेस मैं अपने साथ में लेकर के जाना चाहती हूँ। और यही सोच करके मैंने उस बात को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब इस बारे में नहीं सोचूंगी। बार बार सोचती हूँ, बार बार परेशान होती हूँ, बार बार ख्याल आता है, बार बार बुरा लगता है, इसलिए नो, एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड आई एम गोइंग टू सी माई मदर वंस अगेन, राइट, एंड नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ऑलराइट, so this is our poetry, the word meaning and the meaning behind it. What is the meaning behind this poetry? This was the word meaning, and in between I am also, while paraphrasing it, I am also relating my real life with the poetry so that you should understand. The meaning behind the text of this poetry is this only, that we should always be thinking positive. We should always try to accept the nature. We should always pray to God that He should give us strength. हमें इतनी भगवान ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि हम ये सारी चीज़ों को समझ सकें, बियर कर सकें, झेल सकें। राइट, मैं नहीं चाहता, मैं कहता भी नहीं हूँ कि आप सब लोग इस बात को सोचिए, लेकिन जिंदगी की सच्चाई बेटा यही है कि जितनी जल्दी आप उस बारे में सोचेंगे नहीं तो उतना वो डिफिकल्ट होगा। कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर हु इज गोइंग टू थिंक, कौन सोचेगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी, you can say, the most difficult thought and thinking in the world. But the poetess wants us to understand with this small poetry of hers कि whatever is today, it will change tomorrow. Nothing in this world is permanent, right? Except for time. Time changes, time flies, and everything changes as per the time, and nobody has got the power to overcome the nature and the time. तो हमें असल ज़िंदगी में इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इस पोइट्री से सीखना चाहिए कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। I told you earlier, I am saying it again, the choice is always yours. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने करियर पे फोकस मत करिए या ध्यान मत दीजिए या वो मत करिए, लेकिन ये सोच, ये चॉइस, ये डिसीजन आपका है। ख्याल भी आपको रखना है, करियर भी आपको बनाना है। अच्छा, अगर एक कदम हम पीछे आकर के बात करें, हम करियर बनाते किसके लिए हैं, क्यों बना रहे हैं? कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी लाइफ मिल जाए, अच्छे पैसे देने वाली नौकरी मिल जाए, क्यों? वाई? अपने आने वाली जनरेशंस के लिए कि आज से 20 साल बाद जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें अच्छे स्कूल में भेजेंगे, पैसा इसलिए होना चाहिए? या अभी जो करंट सिचुएशन है कि जिस घर में हम 2 कमरे के घर में रह रहे हैं तो हम एक 4 कमरे का घर बना पाए इसलिए चाहिए? Right? So I am stopping it over here on this thought. ये पोइट्री किस लिए थी, क्यों थी, आपको पूरी तरह से आई होप कि समझ में आ गया है। Still if there are any doubts you can ask me always.
You can mail me your queries and I will be the happiest person to help you. Right? This has got some small 5 questions. I want you to finish it. Never ever leave it. I have taught you people. Once you finish the chapter, you should finish the exercises of it as well. But since the level has gone a little up, ये वो पोइट्रीज, ये वो स्टोरीज जैसी हमारी 11th में हुआ करती थी वैसी नहीं है, उनसे इनका लेवल काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको उतना ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप इसके बारे में समझ पाएंगे, इसके ऊपर काम कर पाएंगे. ऑलराइट, on that note, thank you very much, and it was a wonderful class, and see you all again.